Good evening, all of you. Once again, we are meeting in the 1 month spoken English workshop. Good evening, all of you. Present simple tense. So, as I told you, there are two helping verbs in the present simple tense. One is the do, another is the does. Does is used with only one person, that is third person singular. Does is used with only third person singular tense. And with the other rest of the other persons, we used do. Do you come? Do I come? Do we come? Do they come? But does has a special characteristic. Does is used with he, she, it and name of a person. Like I come here, I do not come here. This part we have covered already. Then we have present continuous tense. In the present continuous tense, we have three helping verbs: is, am, are. Am is used with I, means first person singular, and the is used with third person singular, and the are is used with rest of the other persons, means the first person plural, second person singular, second person plural, and the third person plural also. We use are. Like I am coming here, I am not coming here, you are going there, you are not going there. And after that we have present perfect tense. In present perfect tense we have two helping verbs, has and have. Has is used with third person singular, and with the rest of the other persons we use have. Like I have come, you have come, he has come, they have come, my friend has come. Cause my friend is a singular and also third person. My friend is a third person singular. This is why we are using has. In case of my friends is plural. This is why we are using have. Today I will send you all the notes of these, all the tenses. For the present perfect continuous tense, we have has, have and been. Has again is used with the third person singular. The rule is same, and the have is used with the rest other persons. But the been is common with all the subjects. It is used with all other subjects. Like I have been coming here for 2 months, I have not been coming here for 2 months. Similarly, for you, you have been coming, he has been coming. In case of he, we will use has. They have been doing, my friend has been teaching, my friend have been teaching. My friend is third person singular. My mother is also third person singular. My father is also third person singular. So my friend, my brother, my sister, my father, my mother, my cousin, my chauffeur, etc., etc. My neighbor, my classmate. With all these persons we will use has. This part also we have covered. Then we have past tense. In case of past tense, we have the very first tense, past simple tense. In the past simple tense we have did. Did also is used with all the persons. Like I came. अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आई केम हियर. केम इज़ द वी टू. इस वी टू को चेंज करके नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड का यूज़ किया जाता है. डिड नॉट कम. ये जो कम है ये केम से ही बना है, लेकिन ये वी टू है, ये वी वन है. ठीक है. डिड कॉमन है, आई के साथ भी, यू के साथ भी, ही के साथ, दे के साथ, माई फ्रेंड के साथ, माई फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ में डिड का वर्ड कॉमन है. डिड को ही यूज़ करना है हमें. यहाँ पर कोई इशू नहीं है. दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तीन भी नहीं है, बल्कि एक ही है. देन वी हैव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी हैव वाज एंड वर. वाज का यूज़ जो है वो दो जगह किया जाता है, आई के साथ और ही, शी, इट या नेम के साथ में. ही वॉज कमिंग, शी वॉज कमिंग, आयशा वॉज कमिंग, I was coming. Means first person singular and the third person singular. And after that first person plural, second person singular, second person plural, third person plural के साथ में were का यूज़ किया जाता है. You were coming, they were coming, my parents were coming, we were coming. Like I was coming, I was not coming, you were going there, you were not going there. यू के साथ में वर का यूज़ करेंगे. ही वॉज स्पीक इंग्लिश, ही वॉज नॉट स्पीक इंग्लिश. ही शी इट एंड नेम के साथ में, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वॉज का यूज़
आई के साथ भी वॉज का यूज़ किया जाता है, ठीक। माई फ्रेंड के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वॉज का यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड्स के साथ वर का यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड वॉज टीचिंग इंग्लिश, माई फ्रेंड्स वर टीचिंग इंग्लिश, माई फ्रेंड वॉज कमिंग हियर, माई फ्रेंड वॉज सेंडिंग अ लेटर, माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग क्रिकेट, माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल, वॉट एवर इज देयर। Then we have past perfect tense. In the past perfect tense, we have one helping verb again. Had. Had is common with all the subjects. It is being used with all the subjects. Like I had come here. मैं यहाँ आ चुका था, ठीक। V3 है ये जो कम है, ये क्या है? V3 है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। I had not come here. मैं यहाँ नहीं आ चुका था। यू हैड गॉन देयर, तुम वहाँ जा चुके थे। यू हैड नॉट गॉन देयर। और मैंने बताया था कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, बल्कि अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब हमेशा लेकर के आता है, ठीक। हैड सबके साथ में कॉमन है। ही हैड, दे हैड, माई फ्रेंड हैड, माई फ्रेंड्स हैड। ये पार्ट भी हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक। देन वी हैव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी हैव हैड एंड बीन। हैड एंड बीन इज ऑल्सो कॉमन विद ऑल द सब्जेक्ट्स। लाइक आई हैड बीन कमिंग हियर फॉर 2 months। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन ऑल द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस वी मेंशन टाइम। इन ऑल द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस वी मेंशन टाइम। टाइम को मेंशन करना यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। टाइम को मेंशन करने के लिए जो हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं वो 2 हैं, फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस मैंने यूज़ तो बताया आप लोगों को, मैंने स्लाइड शो की थी कि फॉर कहाँ यूज़ होता है, सिंस कहाँ यूज़ होता है। फॉर यूज़ होता है पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन मैंने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हुई हैं उनमें एग्जाम्पल सिर्फ फॉर की यूज़ की गई है। जब ये कवर कर लेंगे ना हम लोग, कल इसको कवर कर देंगे, फाइनल टच दे देंगे, तो हम लोग सिंस को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव वगैरह भी हम लोगों को पढ़ना है इसी पार्ट के अंदर में। तो हम लोग टाइम को ज़रूर मेंशन करते हैं। अब ये चूँकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड बीन। हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन कॉमन है। ये आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, ही शी इट के साथ, ठीक, दे के साथ, वी के साथ, हर जगह ये कॉमन है यहाँ पर। आई हैड बीन कमिंग हियर फॉर 2 months, आई हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 months। यूजुअली एक्टिव वॉइस के अंदर नॉट थर्ड प्लेस पर आता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और अपने साथ में एक हेल्पिंग वर्ब को ज़रूर लेकर के आता है, ठीक है। माई फ्रेंड हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months, माई फ्रेंड हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months, माई फ्रेंड्स हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months, माई फ्रेंड्स हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 months। सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ में कॉमन है ये हैड बीन, ठीक। और बीन कॉमन है परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर में भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये बीन कॉमन रहेगा, ठीक है। देन वी हैव फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि फ्यूचर टेंस के अंदर जो हमारे पास में सबसे पहला टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए हमारे पास जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है डेट इज़ विल। विल इज़ कॉमन विद ऑल द पर्सन्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। आई विल कम हियर, आई विल नॉट कम हियर, नॉट से पहले विल को लगाना मैंडेटरी है। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते वक्त। ये हम लोग अभी तक क्या स्टडी कर रहे हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं। क्वेश्चन बनाना नहीं सीखा अभी तक हम लोगों ने, क्वेश्चन करना नहीं सीखा है, ठीक। यू विल गो देयर, यू विल नॉट गो देयर, तुम वहाँ जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे। ही विल स्पीक, ही विल नॉट स्पीक। दे विल डू होमवर्क, दे विल नॉट डू होमवर्क। माई फ्रेंड विल टीच, my friend will not teach. My friends will teach, my friends will not teach. So will is common with every subject, every person. Then we have future continuous tense. In the future continuous tense we have two helping verbs, will and be. Will and be is also common with every subject, every person. तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है ये। आई विल बी कमिंग हियर, आई विल नॉट बी कमिंग हियर। अब यहाँ जो और देने वाली बात है ना, जो बोलने में गलती होती है स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये, ठीक, कि जो नॉट है वो कहाँ जाएगा? ये नॉट, ये
यहाँ पर गलती हुई हुई है। अच्छा, एक ही सेंटेंस में गलती है, बाकी सारे ठीक हैं। विल के फ़ौरन बाद नॉट आ जाना है थर्ड प्लेस पर, जो मैंने रूल बताए हुए हैं, ठीक है। लाइक आई विल बी कमिंग हियर, आई विल नॉट बी कमिंग हियर, नॉट बी मानिएगा, अब इसको ऐसे ऐसे एक्सचेंज कर लिएगा, बाकी सारे ठीक है। यू विल बी गोइंग देयर, यू विल नॉट बी गोइंग देयर, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। सो विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट आना है यहाँ पर, ठीक है। आई विल नॉट बी गोइंग देयर, दे विल नॉट बी, लाइक वो। अब ऐसा कोई सेंटेंस बनाइए इंग्लिश के अंदर, हिंदी बोलिए पहले, कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूस में शो करना है, वो खेल नहीं रहे होंगे, वो खेल नहीं रहे होंगे, ठीक। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, वो मीन्स दे, कई सारे लोगों के बारे में बात चल रही है। दे विल नॉट बी प्लेइंग, वो खेल नहीं रहे होंगे, ठीक। वो शाउटिंग कर रहे होंगे, दे विल बी शाउटिंग। और कहाँ यूज़ हो सकता है इसका? वुड, वुड, WOLD। अगर ये बात कंफर्म नहीं है, पक्की नहीं है, हमें श्योरिटी नहीं है कि वो लोग शाउट कर रहे होंगे या खामोशी से बैठे होंगे। अब हम यहाँ पर जो तज़किरा कर रहे हैं वो 17, 18, 20 साल के लड़कों का तज़किरा कर रहे हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास करने आए हुए हैं और टीचर मौजूद नहीं है। सिचुएशन क्रिएट कर दी मैंने, ठीक। ऐसे लोगों के बारे में हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, तो पक्की उम्मीद है कि उधम ही कर रहे होंगे, ठीक। तो ऐसी हालत में विल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ बात श्योर ना हो और फ्यूचर की ही बात कहनी है, तो फिर वुड का यूज़ करा जाता है। वुड, मैं आऊँगा, पक्का नहीं है, आई वुड कम, ठीक है। यू वुड बिकम एन ऑफिसर, पक्का नहीं है, तो मैं एक ऑफिसर बच जाऊँगा। अब वो वाला जो वुड है, वुड के 7-8 यूजेस हैं, बल्कि अगर देखें आप तो वुड के अराउंड, हाँ, वुड के अराउंड 15-16 यूजेस हैं। तो वहाँ जो वुड है वो एक हम्बलनेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। शेल का यूज़ मैं करता हूँ ना, शेल वी स्टार्ट, सजेशन के लिए, परमिशन के लिए, बता रहे हैं ना, परमिशन के लिए, सजेशन के लिए शेल का यूज़ किया जाता है, परमिशन लेते वक्त। मैंने जब ये स्टार्ट किया था ना, तो मैंने पहले ही दिन एक बात बताई थी विल के बारे में, दोबारा बताता हूँ कि जब किसी बात की श्योरिटी हो फ्यूचर के बारे में कि ये काम होना ही होना है, मैं आऊँगा ही आऊँगा, तो फिर उस हालत के अंदर विल का यूज़ किया जाता है उस हालत के अंदर। दूसरी जो बात है ना समझने वाली, वो ये है कि जो प्रैक्टिकल इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश, उसके अंदर जो मैक्सिमम यूज़ है, ज़्यादा जो यूज़ है फ्यूचर को लेकर के, वो विल का है, अब ना कि शेल का। शेल को मिनिमाइज़ कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बात ये सीखी कि विल और बी के बीच में नॉट को लगाना है हम लोगों को थर्ड प्लेस पर, ठीक। ही विल बी स्पीक इंग्लिश, ही विल नॉट बी स्पीक इंग्लिश, दे विल बी डूइंग होमवर्क, दे विल नॉट बी डूइंग होमवर्क, माई फ्रेंड विल बी टीचिंग इंग्लिश, माई फ्रेंड विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर भी विल और बी कॉमन है तमाम पर्सनस, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ में, कोई इशू नहीं है, कोई दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब एक ही है। विल एंड बी एक ही साथ यूज़ किए जाते हैं, कब? फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। और वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होनी है? V4, ING फॉर्म भी कहा जाता है इसको। देन वी हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी हैव 2 हेल्पिंग वर्ब्स, विल हैव। कोई काम अगर हो चुका होगा विद श्योरिटी, तो हम लोग विल का यूज़ करेंगे उस हालत के अंदर में, उसके साथ में हैव को भी लगाएंगे, विल हैव। आई विल हैव कम, मैं आ चुका हूँगा, ठीक है। अब ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कीजिए जहाँ पर कि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हों और वो काम हो चुका होगा फ्यूचर में, ये बात तय है। बताइए कोई एग्जांपल। हिंदी में बताइए पहले, बोलिए। कल फेयरवेल पार्टी हो चुकी होगी, टुमारो फेयरवेल पार्टी विल हैव ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज हो चुकी होगी। पहले तो आप ये बात बोलिए ना, अभी तो वो स्टार्ट भी नहीं हुई है। अब आपको कहना है कि वो ख़त्म हो चुकी होगी 8 बजे तक, ये बात कहें तो बात समझ आएगी कि वो 8 बजे तक ख़त्म हो चुकी होगी। तो फिर बोलेंगे कि टुमारो टिल 8 o'clock, ठीक,
फेयरवेल पार्टी विल हैव फिनिश्ड, फिनिश हो चुकी होगी, टिल 8 o'clock फेयरवेल पार्टी विल हैव फिनिश्ड, डन। सो इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी हैव विल एंड हैव, ये भी कॉमन है तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। लाइक आई विल हैव कम हियर, मैं यहाँ आ चुका हूँ, आई विल नॉट हैव कम हियर, मैं यहाँ नहीं आ चुका हूँ, ठीक। अब हम लोग क्या है ना कि स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ में हम लोगों ने क्या है कि कोर टेंसेस कंप्लीटली पढ़ने की यहाँ पर कोशिश की है, इसलिए कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका प्रैक्टिकल इंग्लिश के अंदर में यूज़ कम है स्पोकन इंग्लिश के अंदर में। जैसे कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर में नेगेटिव सेंटेंस भी बना हुआ है, नेगेटिव के साथ में, ये काम नहीं हो चुका होगा। नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश के अंदर में इसका यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन स्ट्रक्चर का पार्ट है इसलिए इसको भी रखा गया है। इससे फ़ायदा है कि ये हासिल हुआ आप लोगों को कि कंप्लीट टेंसेस आपके सामने आ गए कि अच्छे इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, और 1-2 दिन के अंदर में पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो अगेन वही बात है कि ये विल और हैव जो है कॉमन है। माई फ्रेंड विल हैव टॉट इंग्लिश, वो पढ़ा चुका होगा, मेरा दोस्त इंग्लिश पढ़ा चुका होगा। माई फ्रेंड्स विल हैव टॉट इंग्लिश, मेरे दोस्त यानी कई दोस्तों की बात चल रही है, इंग्लिश पढ़ा चुके होंगे, डन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे सामने 3 हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, विल, हैव एंड बीन। अगर फ्यूचर के अंदर में ये बात शो करनी है कि कितने टाइम से कोई काम हो रहा होगा, टाइम को मेंशन करना है। अगेन आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर टाइम को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो उस हालत के अंदर देखिए आई विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 months, मैं 2 महीने से यहाँ आ रहा हूँगा, तो टाइम को मेंशन किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, आई विल हैव बीन, 3 हमारे पास में अलग अलग वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर, विल, हैव एंड बीन, और ये तीनों कॉमन है तमाम पर्सन्स के लिए। नॉट का यूज़ थर्ड प्लेस पर ही किया जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर। तो नॉट का यूज़ कहाँ है, थर्ड प्लेस पर है। ये मुद्दा याद रखना है आप लोगों को, इसमें गलती हो सकती है लिखते वक्त, बोलते वक्त। तो ये भी सबके साथ कॉमन है, माई फ्रेंड के साथ, माई फ्रेंड्स के साथ, ही के साथ भी, विल के साथ में भी, ही विल हैव बीन स्पीकिंग, दे विल हैव बीन डूइंग, कॉमन है। वो यहाँ 2 महीने से आ रहा होगा, वो 2 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, वो 2 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, वो 2 महीने से वहाँ जा रहा होगा, इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। इसका यूज़ भी प्रैक्टिकल इंग्लिश के अंदर कम है, बहुत कम है। कंटिन्यूअस से अगर बताना होगा हम अपने कंटिन्यूअस से ही बता देंगे। हाँ, कंटिन्यूअस से ही बता सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसको इसलिए रखा गया था कि जो 12 टेंसेस हैं उनको कम्प्लीटली पढ़ा दिया जाए, तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आखिर के अंदर में जो हमारे पास में टॉपिक है ना टेंस के अंदर में, वो है क्वेश्चन को बनाना। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, ही गोज़ टू स्कूल, ही, अब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लीजिए आप लोग। ही गोज़ टू स्कूल, अब ये जो ही है ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर हम लोग डू डज में क्या यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। हेडिंग लगी हुई है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अगेन हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर से पास्ट को पढ़ेंगे, फिर से फ्यूचर को पढ़ेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये गोज का गो कर दिया हम लोगों ने, और नॉट अकेला नहीं आता, डज को लेकर आएगा। डज इसलिए आएगा क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब अगर यहाँ देखें हम लोग हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इसकी हिंदी बन रही है ना, वो ये बन रही है कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक, वो स्कूल नहीं जाता है। तो वो क्या हो गया, ही हो गया, नहीं जाता है नॉट हो गया, जाता है गो हो गया, वो स्कूल नहीं जाता है तो टू स्कूल। तो डज की इंग्लिश क्या है दरअसल अगर देखा जाए तो, डज का तो कोई यूज़ ही नहीं नज़र आ रहा है हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यूज़ तो है उसका। अगर वहाँ लगाया गया है स्ट्रक्चर के अंदर और सारी दुनिया के अंदर यही इंग्लिश बोली जाती है, तो इट मीन्स इसका यूज़ है। इसका जो मेन मुद्दा है ना आज की क्लास में समझने वाला, वो ये है कि क्वेश्चन करते वक्त ये जो डज है ये क्या बन जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, क्या वो यहाँ आता है, क्या वो सुबह जल्दी उठता है, क्या वो सुबह देर से उठता है, क्या उसकी तबीयत ख़राब है,
तो ये डू और डज और इज एम आर यानी जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी मीनिंग क्या बन जाएगी? क्या। ये सेंस क्या देना शुरू कर देंगे? क्या वाले सेंस में चले जाएंगे सारे हेल्पिंग वर्ब्स। क्या वो स्कूल जाता है, तो ये क्या बनेगा? क्या। तो डज से शुरू करा जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर मेरे से, नहीं पॉजिटिव क्वेश्चन बनाया ना, पॉजिटिव क्वेश्चन बनाया, क्या वो स्कूल जाता है। नेगेटिव क्वेश्चन अगर बनाएंगे कि क्या वो स्कूल नहीं जाता है, आएगी उसकी बात भी बहुत डिटेल में आएगी, अभी देखिएगा। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। उससे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि ये ऑलरेडी ई एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ई एस नहीं लगाएंगे, ये है इम्पोर्टेंट बात। अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं जो आपने पूछ लिया है कि नॉट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ जो हिंदी बन रही है वो ये बन रही है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है। अब हमें ये बात बोलनी है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। इस हालत के अंदर में हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली, इधर देखिए आप लोग, ये गोज़ है, ये गो है, ये गो है, ये गो है, ठीक है। क्यों है ऐसा? इसलिए कि यहाँ भी डज लगाए, यहाँ भी डज लगाए, यहाँ पर भी डज लगाए। इस हालत में यहाँ पर ई एस को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ ई एस को ऐड किया गया, ठीक। थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस के अंदर में ये बात एप्लीकेबल है बस। और कहाँ एप्लीकेबल है? इस वाले टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर में ये बात एप्लीकेबल है, बाकी कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं है। अब तो एकदम ही क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि इसका एस ई एस का ताल्लुक प्रेजेंट सिंपल टेंस से है, और वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर से है। कितनी बार रिपीट हो चुकी है अभी तक ये बात? कह सकते हैं इतनी बार मैंने रिपीट करा होगा इस बात को, अराउंड 100 टाइम्स। तो हम लोगों ने क्या को सीखा है आज, यानी क्वेश्चन करना सीखा है कि क्या वो यहाँ आता है, क्या वो यहाँ जाता है। अब इसी को नॉट का यूज़ अभी तो थर्ड प्लेस पर ही है, अब इसकी प्लेस भी चेंज होगी। अभी हम लोग बड़े हो रहे हैं ना, तो चीज़ें थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी आगे चलते हैं, इसी को पढ़ेंगे अब हम लोग आगे। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक और एग्जांपल दी हुई है, यू कम हियर, तुम यहाँ आते हो, यू डू नॉट कम हियर। यू आ गया, यू हमारे सामने क्या है? सेकंड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डू का यूज़ किया जाए। क्वेश्चन बनाते वक्त हमें बोलना होता है कि क्या वो यहाँ आता है, तो क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे? वो क्या तुम यहाँ आते हो, डू यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आते हो, तो तुम का यूज़ किया गया है, यानी यू का यूज़ किया गया है, इसलिए क्वेश्चन बनाएंगे डू यू कम हियर, डू यू नॉट कम हियर। नॉट हाँ यहाँ पर थर्ड प्लेस पर ही आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन को हम लोग किस तरह स्टार्ट कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ। डू हमारा क्या था? हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है। दूसरी एक बात जो समझने वाली है वो ये है, यहाँ पर मुद्दे की बात समझने की, कि जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यस और नो में दिया जा रहा है। क्या वो यहाँ आता है? क्या तुम यहाँ आते हो? यस और नो के अंदर में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर यस और नो में कंप्लीट नहीं होता, एक्सप्लेनेशन देना होता है। वो यहाँ कैसे आता है? अब एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। वो यहाँ किसके साथ आता है? वो यहाँ किस टाइम आता है, ठीक। वो यहाँ कब कब आता है, हाउ ऑफन, कब कब आता है, किसके साथ आता है, विद होम, कब आता है, व्हेन, कैसे आता है, हाउ, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसका एक्सप्लेनेशन देना हो, यस नो से आंसर ना बने, तो फिर कंडीशन हमें दूसरी एप्लीकेबल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं बनाना है। हमारे पास में एक और लॉन्ग टॉपिक है जिसको हम लोग आज और कल के अंदर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना हो जाए, और इसका नाम है सिक्स स्ट्रक्चर टेबल्स। इसको स्टडी करना है हमें। 6 स्ट्रक्चर टेबल के अंदर जो हमारे सामने एजेंडा है, जो टॉपिक है, वो इस तरीके से है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। आई कम हियर, आई डू नॉट कम हियर, यही तो स्टडी कर रहे थे पहले दिन से।
देन वी हैव पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में दिया जाएगा ओनली। डू यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आते हो? डू यू नॉट कम हियर, क्या तुम यहाँ नहीं आते हो? अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल इंटैरोगेटिव। इसी को क्या बोला जाता है? डबल इंटैरोगेटिव। मैंने वर्ड यूज किया है इंटैरोगेटिव। ठीक, इसके लिए एक स्पेशली टॉपिक भी है इंग्लिश के अंदर जिसको हम लोग इंटरगेटिव्स का कहते हैं, इंटरगेटिव्स। ठीक, तो अगेन फिर से हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि इतना रिवीजन करेंगे हम लोग टेंसेस का, और इस मेथोडोलॉजी को अपनाकर आप किसी भी ग्रामर टॉपिक को पढ़ सकते हो यूट्यूब से जाकर के। इस मेथोडोलॉजी को अपनाकर आपकी ग्रामर एकदम चंगी हो जाएगी, बेहतरीन वेल टू डू ग्रामर आपको आ जाएगी। ठीक, इतना रिवीजन करवा करके। आप मुझे बताएं यूट्यूब पर कोई वीडियो ऐसी हो सकती है जहाँ इतना रिवीजन करवाया गया हो? कन्फ्यूज़न ही क्रिएट हुआ है। अभी 2-3 दिन के बाद जो टेंसेस वाला पार्ट है ना, उसके अंदर पूरा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट। आप ये कहेंगे कि नाउ आई एम ऑन द 7th हेवन। यस प्लीज़, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब समझते हैं हम लोग 6 स्ट्रक्चर टेबल को। आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ। आई हमारा सब्जेक्ट है, कम हमारा वर्ब है, और हियर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला हमारे सामने क्या बना? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट कम हियर, ये डू नॉट मैंने बताया कि कभी भी ये अकेला नहीं आता है, अपने साथ में एक हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आएगा। आई डू नॉट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आता हूँ। यही डू क्या बन जाता है? क्वेश्चन करते वक्त। कैसा क्वेश्चन? एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में दिया जाता हो। डू आई कम हियर, क्या मैं यहाँ आता हूँ? हम लोग हिंदी में ऐसा नहीं बोलते, मुझे पता है। हम लोग हिंदी में ऐसा कभी सेंटेंस आपने ज़िंदगी में नहीं बोला होगा कि क्या मैं यहाँ आता हूँ। स्ट्रक्चर समझना है हमें, सिर्फ इसलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर आई हुई है फिल वक्त हमारे सामने, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर समझने के लिए। इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? डू यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आते हो? डू यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो? डू यू, डू अपनी जगह, आई की जगह यू, कम की जगह गो, देयर हेयर की जगह पर देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो? डू यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग ही बनाएंगे क्वेश्चन। पूछिए, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वहाँ बन जाएगा क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक, यहाँ पर तुम तुम्हें बन जाएगा, सेंस चेंज करेगा। ये कैन हमारा मॉडल्स है, मौका रहेगा तो मैं एक क्लास लूँगा मॉडल्स के ऊपर, जितने मॉडल्स हैं उनका प्रैक्टिकल यूज़ सिखा दूँगा मोटा मोटा। ठीक, तो ये हमारा यस नो वाले क्वेश्चंस हो गए, या फिर नॉर्मल कह लीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देन वी हैव डबल इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। ये जो डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं ना, वाई, व्हेन, वेयर, विद होम, बाय होम, हाउ मच, हाउ, इन वर्ड्स को WH फैमिली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? WH फैमिली भी इनको बोला जाता है। W नहीं बोलता हूँ मैं, मेरी ज़ुबान पर आप गौर दीजिएगा, मैं W बोलता हूँ, WH फैमिली बोला जाता है। L की आवाज़ नहीं आई है, देखिए आप, WH फैमिली बोला जाता है। यानी वो वर्ड्स जिनसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कब आओगे, कैसे आओगे, क्वेश्चन पूछते हैं ना। स्पेशली किसी जो है 70 साल के बूढ़े से आपकी मुलाकात हो जाए तो वो, या किसी बच्चे से 3 साल के 4 साल के बच्चे से, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं, जब समझा देंगे ना आप तब भी, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या है, इससे क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन उनका चलता रहता है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जो कि हमारा WH फैमिली से स्टार्ट होगा, और इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोला जाता है। इसको व्हेन को, वाई को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। इसकी एक अलग से स्लाइड बनाई हुई है मैंने, जहाँ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। फिलहाल जितना बता दिया उसको रखिए। एक अलग से स्लाइड बनाई हुई है मैंने, जिसमें अराउंड
क्वेश्चन वर्ड्स को ही एक्सप्लेन कर दिया है कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरह से पूछने हैं, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ उसकी बात क्लियर करेंगे। नाउ वी हैव व्हेन डू आई कम हियर, मैं यहाँ कब आता हूँ, वाई डू आई नॉट कम हियर, मैं यहाँ क्यों नहीं आता हूँ। अब जो और देने वाली बात थी ना नॉट के रेफरेंस में, वो ये थी कि नॉट 1 2 3 4th प्लेस पर आया हुआ है, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो डू आई कम हियर, ये वर्ड से समझ लेना है पॉइंट। डू आई कम हियर, डू आई कम हियर, डू आई नॉट कम हियर, डू आई नॉट कम हियर, एडिशन क्या हुआ है, क्वेश्चन वर्ड का ही तो एडिशन हुआ है। तो अगर देखा जाए तो नॉट तो अपनी प्लेस पर है, इन एडिशन हमने क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया जाए, यानी कि ये सेंटेंस और ये दोनों सेंटेंस एक ही तो हैं। चेंज जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का ही चेंज हुआ है बस, और कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली यू गो दियर, यू डू नॉट गो दियर, डू यू गो दियर, डू यू नॉट गो दियर, व्हेन डू यू गो दियर, तुम वहाँ कब जाते हो, वाई डू यू नॉट गो दियर, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो। ठीक, क्वेश्चन करना हम लोगों ने सीखा है आज। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है या बोलता है, ही शी दोनों को हम लोग एक ही कैटेगरी के अंदर में मानते हैं। वो इंग्लिश बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता है। डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश? अब अशरफ ये याद रखना है, यहाँ एस लगाया है, यहाँ नहीं लगाया है, इसमें गलती नहीं होनी है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि डज लगा हुआ है, जब डज लग गया तो फिर स्पीक, स्पीक, डज नहीं है पहले सेंटेंस में तो फिर स्पीक्स, प्लेज, गोज, स्पीक्स, स्टील्स, सिट्स, लर्न्स, रीड्स, इस तरीके से एस को लगा करके सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। ठीक है, डिलीवर्स, स्पीक्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, ठीक, टीचेस, एस को ऐड किया जाता है कब, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। और ये कौन से टेंस में एप्लीकेबल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर में ये बात एप्लीकेबल है। क्वेश्चन बना रहे हैं, डज ही स्पीक क्वेश्चन, डज ही स्पीक इंग्लिश, तो जो हमारा डज है यहाँ पर वो क्या सेंस दे रहा है, क्या क्या वो इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही गो देयर, क्या वो वहाँ जाता है। ठीक, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है। विद होम डज ही स्पीक इंग्लिश, वो किसके साथ, विद होम होता है, किसके साथ इंग्लिश बोलता है, ये पूरा होता है विद होम, विद होम कंप्लीट बोला जाएगा, किसके साथ? किसके साथ। विद होम को एक साथ ही यूज़ करना है, विद होम। ही इज़ कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहा है, विद होम इज़ ही कमिंग हियर, वो यहाँ किसके साथ आ रहा है, इज़ ही कमिंग हियर। इस पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं हम लोग। ये देख नहीं रहे आप लोग, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के साथ में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड एक माना जाएगा, ये याद रखना है, ये वर्ड एक ही मानेंगे हम लोग लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। डज हेल्पिंग वर्ब आया फॉरन, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है। नॉट की जो प्लेस है 1 2 3 4th हो जाएगी ऐसी हालत के अंदर। अब आपके पास सामने ये मौजूद है, एक रफ पेपर निकालिए, मैं आप लोगों को कुछ क्लास वर्क करवाता हूँ। किस जगह, डज ही स्पीक इंग्लिश, व्हाट ही स्पीक इंग्लिश, नहीं फिर तो गलत बात हो जाएगी ना, व्हाट ही स्पीक इंग्लिश ग्रामेटिकली गलत माना जाएगा। क्या वो इंग्लिश बोलता, नहीं 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 नहीं, नो। लिखिए, जिस तरीके से यहाँ एक टेबल ये बनी हुई है, सेम इसी स्टाइल के अंदर में आपको एक टेबल बनानी है शी के साथ, और स्पीक की जगह लेना है टीच, टीच हिंदी, शी टीचेस हिंदी। ठीक, तो नेक्स्ट बनाएंगे शी डज नॉट टीच हिंदी, HINDI हिंदी।
डन। तो फिर एक काम ये कीजिए, ये टेबल कंप्लीट किया आपने, तो फिर एक टेबल और बनाइए जिसके अंदर आप वर्ब लीजिए यू, सब्जेक्ट लीजिए यू, और वर्ब लीजिए प्ले वॉलीबॉल। यू प्ले वॉलीबॉल, यू डू नॉट प्ले वॉलीबॉल। प्रेजेंट सिंपल, यू प्ले वॉलीबॉल, यू डू नॉट प्ले वॉलीबॉल। Do you play volleyball? Yes. फिर एक और बनाइए, माई पेरेंट्स लिव इन दुबई। माई पेरेंट्स लिव इन दुबई, माई पेरेंट्स डू नॉट लिव इन दुबई। माई पेरेंट्स प्लूरल है ना, ये माई पेरेंट्स इज द थर्ड पर्सन प्लूरल, डू नॉट। माई पेरेंट्स डू नॉट लिव इन दुबई। तो फिर डज नॉट, हाँ वो पेरेंट्स है तो डू नॉट रहेगा, ओनली डू नॉट। पेरेंट्स में ऐसा लगा रहेगा, प्लूरल लिया है उसको, फादर मदर बोथ। डन। फिर लास्ट में एक टेबल और बनाइए, वी। इंटरोगेटिव बनाइए ना कि माई पेरेंट्स लिव इन दुबई, माई पेरेंट्स डू नॉट लिव इन दुबई। डू माई पेरेंट्स लिव इन दुबई, डू माई पेरेंट्स नॉट लिव इन दुबई। ठीक, अब हमें क्वेश्चन बनाने लायक, देखिए मैं बनाता हूँ तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ समझ लेते हैं। माई पेरेंट्स डू नॉट लिव इन दुबई, डू माई पेरेंट्स लिव इन दुबई, डू माई पेरेंट्स नॉट लिव इन दुबई। अब हमें ये क्वेश्चन पूछना है, दुबई में रहते हैं माँ बाप, तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ रहते हैं? ठीक है,
वेयर डू माई पेरेंट्स लिव इन दुबई, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन भी देखना है कि क्या बना रहे हैं हम लोग, वेयर डू माई पेरेंट्स लिव इन दुबई। ठीक, अब वाई बोला है वैशाली ने, तो वाई डू माई पेरेंट्स नॉट लिव इन दुबई, क्यों नहीं रहते हैं, इसकी हिंदी ये बनेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को समझा जा रहा है, प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते कि क्यों नहीं रहते हैं। तो यानी क्वेश्चन वर्ड आया, डू यानी हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक, माई पेरेंट्स यानी कि सब्जेक्ट आया, नॉट तो है ही, लिव इन दुबई ये हमारा क्या है, लिव तो है मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, अब ये जो मेथोडोलॉजी है ये हर जगह एप्लीकेबल है, यानी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाया जाता है, चाहे जो टेंस। देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही करेंगे, आई एम कमिंग हियर, मैं यहाँ आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग हियर, एम आई कमिंग हियर, क्या मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, सिर्फ इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। हाँ, हिंदी में हम लोग ऐसा नहीं बोलते, सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने के लिए एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम लोग क्वेश्चन बनेंगे, एम आई कमिंग हियर, क्या मैं यहाँ आ रहा हूँ। ठीक, क्या वो यहाँ आ रहा है, तो क्या बनाएंगे, इज़ ही कमिंग हियर, क्या वो यहाँ आ रहा है, क्या वो वहाँ जा रहा है, या क्या वो वहाँ जा रही है, इज़ शी गोइंग देयर, क्या वो वहाँ जा रही है। ठीक, क्या वो रेडी हो रही है, इज़ शी गेटिंग रेडी, क्या वो तैयार हो रही है जाने के लिए। ठीक है, क्या वो खेल रही है, इज़ शी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रही है। क्या वो एग्ज़ाम लिख रही है, एग्ज़ाम हॉल में बैठी हुई है, इज़ शी सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, क्या वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हुई है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, किसको यूज़ करके, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके। एग्जाम्पल यहाँ सिर्फ इतनी दी हुई है। तो और सिमिलर रूल वही है, विद होम एम आई कमिंग हियर, मैं यहाँ किसके साथ आ रहा हूँ, तो एम आई कमिंग हियर, एम आई कमिंग हियर, ये सेम ही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर में, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया गया है। वाई एम आई नॉट कमिंग हियर, तो वाई एम आई नॉट कमिंग हियर, एम आई नॉट कमिंग हियर, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया जाता है। बस इन दोनों के अंदर ही क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, बनाइए एक और एग्जाम्पल आप, मैं चेक करूँगा अभी ये पेपर्स, हो सकता है सबमिट कर लें अगर टाइम कम हुआ तो। कोई भी बना दे सर। मैं बोल रहा हूँ, डू माई पेरेंट्स लिव इन दुबई, वेयर डू माई पेरेंट्स, वो बनाया हुआ तो है, वेयर डू माई पेरेंट्स लिव इन दुबई, बनाओ, देखो वहाँ से बनाओ जल्दी। आप ये बनाइए प्रैक्टिकल, यहाँ जो डिपार्टमेंट में आप बोलते होंगे वो वाले सेंटेंस लीजिए पहले, उससे आप हैबिचुअल हैं। क्या वो खेल रही है, ठीक, शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ नॉट प्लेइंग, इज़ शी प्लेइंग, इज़ शी नॉट प्लेइंग, विद होम इज़ शी प्लेइंग, वो किसके साथ खेल रही है, वो क्यों नहीं खेल रही है, वाई इज़ शी नॉट प्लेइंग। बनाइए, क्या वह नहीं, पहले नॉर्मल, शी इज़ प्लेइंग, पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाइए पहले, शी इज़ प्लेइंग, ओनली प्लेइंग है, आगे हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है उसके अंदर, शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ नॉट प्लेइंग। ठीक, एक बात समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, आइए यहाँ जो समझने वाली बात है ना, वो ये है, देखने वाली बात, जो देखने वाली बात है, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, आई एम कमिंग हियर, आई एम नॉट कमिंग हियर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर में ये स्पेशली एप्लीकेबल है कि नॉट के साथ में हम लोग डू डज का यूज़ करते हैं। ठीक, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर में भी ये बात एप्लीकेबल है, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, आई डिड नॉट गो देयर, तो नॉट के साथ में अलग से आते हैं ये डू डज डिड। तो जो लैंडिंग होगी ना हमारी क्वेश्चन बनाते वक्त, वो तो यहाँ होगी, इसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। डू यू प्ले वॉलीबॉल, लेकिन ये क्या है, हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है,
इसलिए नॉट को यूज़ नहीं करा है यहाँ पर। ये हमारा क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए नॉट को पूरा पूरा यूज़ कर दिया। डू यू नॉट प्ले वॉलीबॉल। उसके बाद डू यू प्ले वॉलीबॉल, डू यू प्ले वॉलीबॉल क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया गया है। ठीक, डू यू नॉट प्ले वॉलीबॉल, डू यू नॉट प्ले वॉलीबॉल क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया गया है। इतनी आसान सी बात है, देखिए इससे आसान बात क्या होगी। ठीक, तो लबीबा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी तो बहुत मज़ा आ गया होगा कॉन्सेप्ट टेंसेस को लेकर के, काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अरे इतना आसान था, क्वेश्चन को ऐसे बना देते थे। अशरफ व्हाट डू यू से? अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ। वैशाली व्हाट डू यू से? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो लाइफ में कभी नहीं हो पाया था किसी कोचिंग के अंदर किसी टीचर से। व्हाट डू यू से औसफ? मज़ा आया? बल्ले बल्ले जी। तो क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया, शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ नॉट प्लेइंग, इज़ शी प्लेइंग, इज़ शी नॉट प्लेइंग, विद होम शी इज़ प्लेइंग नहीं, इज़ शी प्लेइंग। सर ये तो हो गया, इज शी प्लेइंग, इज़ शी प्लेइंग, इज शी नॉट प्लेइंग। देखिए ये वाले के ये जो सेंटेंस है ना क्वेश्चन वर्ड, इसी के अंदर क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है बस, पॉजिटिव। विद होम इज़ शी प्लेइंग, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब। बट सर इसमें आएगा ना, विद होम इज शी प्लेइंग। इज शी प्लेइंग, विद होम इज शी प्लेइंग। ये प्रोफेसर्स भी गलती करते हैं बोलते हो, ठीक है। उसके लिए बोलना पड़ेगा, वाई इज शी, वाई इज शी नॉट प्लेइंग, वाई इज शी नॉट प्लेइंग। ठीक, डन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग हिंदी में बताइए, आप लोग यहाँ किस तरह बात करते हैं कंटिन्यूस में, वहाँ क्या हो रहा है? किसकी क्लास करने जा रही है, क्या पढ़ाया, सुबह कंडीशन, हाँ, क्या कराया, जल्दी चलो कंडीशन। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का यूज़ कीजिए। सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर, सर क्या पढ़ा रहे हैं ना, ये टॉपिक चल रहा है क्लास में। ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, सर क्या पढ़ा रहे हैं। सर यहाँ पर माना जाएगा, सर को माना जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो व्हाट से क्वेश्चन शुरू होगा, क्या पढ़ा रहे हैं, व्हाट डज सर, व्हाट डज सर टीचिंग, बस कंप्लीट हो गया। इज नहीं, फिर यहाँ पे नहीं, ये कंटिन्यूस है ना आपका, तो फिर इज लगाइए, व्हाट इज सर टीचिंग, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये जो है ना, ये टेंस तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा इसी तरह से बोलेंगे। अगर हमें सिर्फ इतनी बात बोलनी है, सिर्फ आगे पीछे कुछ नहीं है, तब तो हम लोग इसी तरह से बोलेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर वर्ब होगा। सुनो, मैं बता रहा हूँ उसका सॉल्यूशन भी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर में हो सकता है मैं इसको बताऊँगा। तो जब आगे पीछे हम लोग कुछ बात कर रहे हो पहले से, ठीक है, कुछ रीज़न बताया जा रहा हो या कोई भी डिस्कशन चल रहा हो और उसके बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो उसके लिए एक स्पेशल रूल है, लॉन्गर और जरंड का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। उसकी बात हम लोग करेंगे। कुल वक्त यहाँ जो अहम बात है ना समझने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है, जो आपके केस में क्वेश्चन था ना यहाँ पर, इसको जो इधर उधर करना था, वो ये कि तो क्वेश्चन वर्ड के फ़ौरन बाद में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और गौर ये देना होगा कि जो सेंटेंस है वो तातीते वाला है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल वाला सेंटेंस है, तो फिर वो कंटिन्यूस है। जैसे कि वो जो क्वेश्चन था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर इज़ का यूज़ करेंगे, व्हाट इज़ टीचर टीचिंग, ठीक है। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ही की जगह पर हम लोग टीचर को ले आएंगे, व्हाट इज़ टीचर टीचिंग, ठीक है।
यही था बस, कोई बात नहीं है। दिमाग में ये बात लेकर के चलनी है, मुझे आ गया है, अब मैं सही लिखूंगा तो फिर मिस्टेक होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। मेरी बात पे गौर देना है, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, ठीक है। वाइंड अप करें? ओके, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट टुमारो, टिल देन कीप योर लिप्स स्माइलिंग, सी यू टुमारो।